Hello, and welcome to another episode of Passion to Profession. Our today's guest is Mrs. Indu Seth, who is a life coach, and she has learned many courses which can help us a lot. Today, we are going to learn about what different courses she has learned and how they can help us in our life. So, let's welcome Mrs. Indu Seth. So, Indu, welcome to our show, Passion to Profession. Please do introduce yourself to the viewers. Thank you, Mandeen, for having me here for the interview. I am Indu Seth. I am a life coach, a healer, and a numerologist. And I also have a center in Punjabi Bagh wherein I take one-on-one sessions and I also hold workshops. Okay, that's really wonderful. So, tell me one thing: how did this urge of becoming a life coach? How did this journey started for you? So I always believe that every person has a calling. And if the person is not following that calling, so that person will never be happy. So Yes. same happened with me. And I am a stained glass designer and I was running stained glass design business. Okay. And the business was running well, but I wasn't happy. So because that was not my calling, that was not what I was meant to do. So then one fine day, actually it was going on in my mind for years to shut it down and do something which was actually my calling. So Okay. I've been a very, very spiritual person since my childhood. So Okay. yeah, that was since now I'm doing what I'm meant to do. I'm really happy. That's very true. I mean, you have need to follow your heart. That is what the thing is like. Absolutely. Okay, so Absolutely. as you mentioned that you have done so many things, so I want to tell my viewers about different teachings that you give. So can we just start with hypnotherapy? Let's start with hypnotherapy in small brief ways only. If you could tell us कि क्या होता है hypnotherapy में? हिप्नोथेरेपी में जैसे टीवी पे दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कह रहे हैं सो जाओ इट्स जस्ट दैट वी पुट अ पर्सन समटाइम्स अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो समटाइम्स अ पर्सन इज ओपन एंड समटाइम्स a person has buried down all the things inside the subconscious mind. So hypnotherapy may we put a person in a deep state of relaxation. Okay. Where the person is open to suggestions, open to see what is good for the person. So it's basically a deep state of relaxation. एंड ये हर किसी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ कुछ लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है जिनको जिनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डेप्थ में है या कुछ ऐसा है, राइट? ऐसा है कि आई नेवर प्लान माय सेशंस, तो जब जरूरत कई बार होती है कि एक एंजाइटी इतनी लेवल पे है दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम सजेस्टिंग समथिंग अ पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. सो फॉर दैट पर्सन मेरे को उसको डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में ले जाना पड़ता है एंड देन आई गिव माय सजेशंस. ओके, एंड देन उसके बाद बात आती है एनएलपी प्रैक्टिशनर की. तो व्हाट एग्जैक्टली इज एनएलपी? इसको एक छोटे से इन अ स्मॉल फॉर्म. एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती हूँ विद माय क्लाइंट्स बिकॉज मुझे लगता है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यस, ट्रू. तो अगर हम उसको रिवायर कर देते हैं तो हमारी होल लाइफ में शिफ्ट आ जाता है. दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स गुड. अच्छा, फिर आपने मेंशन किया हुआ है एक्सेस बार्स के बारे में, तो आई एम श्योर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट दिस आल्सो, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेस बार्स. एक्सेस बार्स आजकल बहुत ज्यादा लोग जान भी गए हैं एक्सेस बार्स के बारे में. एक्सेस बार्स में ऐसा होता है कि हमारे हेड के 32 पॉइंट्स होते हैं. उनको सिर्फ टच करने से इन अ पर्टिकुलर वे पुराना सारा पास्ट मेमोरीज डिसिपेट हो जाती हैं एंड मैग्नेटिक करंट आता है जिससे कि हमारी लाइफ एक्चुअली रीवायर हो जाती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट एक्सेस बार्स के टच से. ओके, ओके. फिर दो और बातें रह गई हैं अभी, सॉरी. ईएफटी. EFT is emotional freedom technique.
मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा बैगेज जब लेके चलते हैं तो वो हमें आगे चलने नहीं देता. So when we have Emotional lot of emotional entrapment is emotional too much there baggage, among us. Yeah. yes. तो वो जब इमोशनल बैगेज बहुत ज्यादा होता है तो हमें प्रेजेंट की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती, सब कुछ पास्ट से आगे चलता है. सो Yeah, जब yeah. हम उसको क्लियर कर देते हैं इमोशनल बैगेज को, ईएफटी इज अनदर टेक्निक विच इज ब्यूटिफुल और इमीडिएट रिजल्ट्स भी होते हैं उसके. Okay, that's really wonderful. Okay, and the या last one is midbrain acceleration training. So, what is इट इज मिड exactly midbrain? यस. Yeah, सो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में करती oh, हूँ sorry, छोटे बच्चों activation. के साथ. Acha. हाँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन छोटे बच्चों के साथ करती हूँ मैं. और मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ काम करना. उनकी एनर्जी, स्पेशली यंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स. सो Hmm. यंग चिल्ड्रन की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं. सो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकस, कंसंट्रेशन, विजन, हियरिंग, अलर्टनेस. तो Hmm. जब हम आई मेक देम डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जिससे उनकी कंसंट्रेशन एंड फोकस इंक्रीज होता है. I और think मिड ब्रेन today, एक्टिवेशन. yeah, in today's world, this is what is very much needed because बहुत सारे बच्चे they are going towards their laptops and their computers, as it is this whole year was the year of so much everything going on online. So अगर हम नहीं भी चाहते तब भी हमें बच्चों को मोबाइल्स और लैपटॉप्स देने पड़े, and देने too ही पड़ते हैं. much of laptop usage or a mobile use is not good for us, so because what I believe is like laptops and mobiles is like they start controlling you rather than you control them. So what you're doing is like very good for children. It is really यस. required सो व्हेन now. आई डू माय वर्कशॉप्स मनबीन, बुला मैं बोलती मिड ब्रेन एक्टिवेशन हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आर सो मच फोकस्ड कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर जाए. Hmm. सो सो इट इज आई. तो मैं बुलाती मिड ब्रेन के लिए हूँ, बट व्हेन आई कंडक्ट वर्कशॉप्स मैं बच्चों को मोरल वैल्यूज बहुत देती हूँ क्योंकि पर्सनली Totally. आई फील कि मोरल वैल्यूज एक्चुअली गो विद देम फॉर अ लॉन्ग वे. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनकलकेट करना राइट एज में बहुत जरूरी है. Exactly, even I believe in this, like her all system everywhere is focusing on the IQ, whereas यस. we should be focusing more on the EQ because IQ is required at a certain for a certain time कि आपको कुछ बनना है, ये करना है, but EQ तो आपको you need it till the time you die, you need it, और and we do उनको not टीनेजर्स को इमोशंस हैंडल करना आता नहीं है. आता ही नहीं सो है, बिल्कुल भी नहीं ये आता. सिखाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू हैंडल योर इमोशंस. Yes, and here I would say not only वेरी the इंपॉर्टेंट. teenagers, I think even in the adults, like we face so यस. many problems, like people are going through anxiety and stress so much. It is like really on a peak. Why? Because यस. people are not able to handle their emotions. So to यस. handle that, they need to learn it, how to handle it. यस. That is like something really good, like whatever you are teaching, your process is very good. So आपके पास कैसे ज्यादा क्लाइंट्स, मतलब किनको आप ज्यादा करते हो, ज्यादा स्टूडेंट्स को करते हो या ज्यादा, as you are saying that you do the activities and workshop with the students, so is it more of the students who are coming to you or is it more of the adults also coming to you? एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर कमिंग. एंड इन द लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई है बिकॉज लोगों का बिजनेस अफेक्ट हुआ है. पीपल हैव बीन सिटिंग होम, वो कभी बैठे नहीं है घर पे, एंड द Exactly. होल फैमिली सिटिंग टुगेदर. सो एंड द फियर ऑफ कोरोना, सो एंग्जाइटी लेवल्स हैव एक्चुअली गॉन अप. Hmm. मैं एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग टू मी, बट पर्सनली मुझे टीनेजर्स से काम करने का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. Hmm. एंड जो टीनेजर्स में रिजल्ट आते हैं वो एडल्ट से बेटर आते हैं. सो आई पर्सनली लाइक वर्किंग मोर विद टीनेजर्स, दो आई गेट ऑल सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. Oh, that's really wonderful. स्किज़ोफ्रेनिक भी, बाइपोलर भी, एवरी ओसीडी ऑल्सो थेरेपीज देती हूँ मैं, बट पर्सनली आई लाइक वर्किंग विद टीनेजर्स. I believe आजकल OCD भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है because that mark of being perfect for everybody, it is really going high. सबको perfect होना है और कहीं ना कहीं which leads you to this also. That's what I believe. Like even I get so many people who are suffering from OCD and things like that. So what I believe is like वो जो एक level होता है ना कि मुझे भी वैसा बनना है या मुझे perfect होना है. Everybody should look up to me.
So that thing is really increasing among us because we live for others. हम अपने लिए वो जीना छोड़कर दुनिया के लिए ज्यादा जीते हैं, और ये चीजें because of मुझे भी हैं. social media also, there is a lot of That's what. anxiety in teenagers because of social media also. That's what. So That's what. yeah, Yeah. so So do मुझे you लगता है think कि अपने लिए नहीं, ज्यादा लोगों के लिए जिया जा रहा है इस टाइम. very true. So as you're a healer also, so do you teach meditation also? Because many a times, people come up and they say, meditation kaise karte hain? We need to learn meditation. Yes. Like, see, for me, I would say meditation can be anywhere. Meditation can be, maybe this also, like, this is my passion that I want to talk to people. So this is like a meditation also for me. So people don't understand what exactly is meditation. So they all are, सीखना है. So you teach that also. Yes, I do. Yes, I do. I conduct meditation sessions also. अभी तो मैंने ऑनलाइन भी किए हैं मेडिटेशन सेशंस. Yes, I conduct meditation sessions और सिखाती भी हूँ मैं. और मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड एवरीबडी शुड डू इट. बट एट टाइम्स कई लोग इतने एंग्जाइटी में आते हैं, दे कम एंड से कि मुझे मेडिटेशन सिखा दो, बट देयर एंग्जाइटी लेवल इज सच that I cannot teach them meditation. Even if I teach them, वो कर नहीं पाएंगे. So there's a process which I follow. Yes. So I have to clarify all the emotional baggage and then I proceed with the meditation. That's how I do. Very true. Okay, tell me one thing, Indu. Do you feel that in today's world, more coaches are required, and taking coaching is very much important for everybody? Like, it should be like, it should be a part of your life. It's not that, and you shouldn't feel that, you have some problem. Like, abhi bhi coaches ka wo concept itna clear nahi hai. It's coming up, but not that much. Do you also feel that? मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जितनी कोचेस की जरूरत है, आई थिंक इट हैज नेवर बीन लाइक दिस एवर बिफोर. बिकॉज बच्चों से लेके बड़ों तक को सोशल मीडिया का बहुत बहुत इफेक्ट है. जो टीनेजर्स आज के टाइम पे स्कूल में फेस करते हैं, प्रोबेबली वी हैव नॉट फेस्ड दैट काइंड ऑफ थिंग्स. बॉडी शेमिंग है, बुलिंग है स्कूल में, एंड पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है. समटाइम्स आई फील लाइक काउंसलिंग पेरेंट्स बिफोर देयर चिल्ड्रन. So some people get annoyed by this also, but I think पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी, बिकॉज दे आर गेटिंग ओवर एम्बिशियस. बट आज के जमाने में अगर हम देखें तो प्रोफेशंस भी उतने ही ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड एवरीबडी इज डूइंग वेल. सो बट वो जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है, पीयर्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर तो है ही है, पेरेंट्स का प्रेशर है, आसपास के लोग क्या क्या नहीं कर रहे उसका प्रेशर है. सो आई थिंक कोचेस की जरूरत बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज एट टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स, वो किसी और की बात से बहुत जल्दी रिसीविंग मोड में आ जाते हैं. True. एंड जो हम हाउसवाइफ है, इवन हाउसवाइफ नीड्स काउंसलिंग, क्योंकि सो मच इज गोइंग ऑन. I would say that a big time, they really need a big time Yes. of counseling, because itna kuch aaj hum itni, why are we listening about breast cancer and so many other diseases? All these diseases are connected with your emotions, but nobody comes up by saying this, that yes, the diseases are connected with your emotions, and emotionally you have to be fit and fine. If you are good emotionally inside, you will not face these kind of problems. But कोई इस बारे में भी बात नहीं करता. सब अवेयरनेस के बारे में नहीं करता. और अब वो जमाना नहीं रहा मनवीन कि हम छुपाएं इस बात को. बिल्कुल. अब ये है कि we have to look at our mental health first before anything else, because I believe आपके पास चाहे कुछ भी हो, if you are not happy from inside, nothing else matters in this world. That's very true. कुछ भी matter नहीं करता. Because probably that word mental health is still not taken in a better manner. It is still a taboo. कि आप कोच के पास जा रहे हो या आप काउंसलर के पास जा रहे हो, तुझे क्या हो गया? The other person would say like, तुझे क्या हो गया? But then there are so coaches and counselors, they help you grow out of all these problems. But still people would love to prefer to spend their money on different things, but they would not love to spend the money on themselves, on coaches, which is so much the need of the hour right now. हम उस बात को बिल्कुल भी importance भी नहीं देते हैं कि हमें
कोचेस के पास जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अभी इतना ज्यादा क्लियर हुआ नहीं है, अभी भी इट नीड्स, ऑफ कोर्स इट विल कम, बट अभी टाइम है। नहीं, मुझे लगता है कि अवेयरनेस पहले से बेटर हुई है, हाँ, बेटर हुई क्योंकि है, बट बेटर हुई है और आने वाले टाइम में और बेटर होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, वो लोग ज्यादा रहते हैं जो अंदर से खाली हैं। हाँ, ये तो बहुत तो बहुत, ये तो फैक्ट है। ये जो अंदर से खाली है वो उनको ढूंढना पड़ता है ना, अपना खालीपन को किसी ना किसी तरीके से तो भरना ही पड़ता है। और जब कोचेस आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई खालीपन नजर ही नहीं आता, बिकॉज यू लर्न हाउ टू हैव अ गोल इन योर लाइफ एंड ऐसा है ना मनबीन की हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ मैं नहीं बिल्कुल। मानती कि किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, आती है, सब में आती है। हम्म, इट्स जस्ट दैट कि अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, बिल्कुल। अंदर दबाने से बेटर है कि बाहर निकाल कर उसको हाँ, आगे आगे तो चल, बिकॉज एवरी डे लाइफ इज लाइक अ चैप्टर इन योर स्कूल, एवरी यस, सेकेंड डे इज अ चैप्टर एंड एवरी प्रॉब्लम इज लाइक अ सिलेबस दैट वी नीड टू यस, कम आउट ऑफ। अब हम एक यस, सिलेबस कंप्लीट करते हैं तभी हम आगे क्लास में जाते हैं ना, problems are यस, also like a syllabus for us that we need to learn a lot from that, and यस। whereas the attitude is like अगर कोई problem में आ जाता है तो वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है, उसको इतना ज्यादा वो और अगर नीचे आपके पास गिरने से पहले अगर कोई हाथ पकड़ ले तो ऊपर हम्म खींच सकता है। ऊपर खींच सकता है, और कोचेस का काम ही ये होता है कि यस, आपको नीचे गिरने ही नहीं देना, उन्होंने आपको इतना यस। ऊपर खड़ा कर देना है कि आप अपने दम पे अपने डिसीजंस ले सकते हो, फिर एक टाइम आ जाता है आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप किसी के नहीं पास जाएं पड़ती। भी, नहीं पड़ती, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज सो राइट। नाइस। सो एंड tell me one of your success story, like किसी के साथ कोई ऐसा experience which like you also cherish a lot. मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, एज आई टोल्ड यू कि आई लव वर्किंग विद टीनेजर्स। हर टीनेजर की स्टोरी मुझे बहुत पसंद आती है। व्हेन आई सी चेंज इन देम, व्हेन आई सी देम स्माइलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑल टुगेदर। True. बहुत सारी हैं, लेकिन एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी मुझे पसंद है पर्सनली, क्योंकि वो बच्चा, अगर इतना बड़ा बच्चा, क्लास 12th का बच्चा मेरे पास रोए आके, सो हम्म, इससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं है। नहीं हो सो सकता। अगर वो बच्चा रोता हुआ आया था और देन ही हैड प्रॉब्लम्स इन स्कूल में बॉडी शेमिंग का लॉट वाज गोइंग ऑन विद दैट गाय, हम्म, and lot of emotional stress was there at home as well with हम्म, parents. हम्म, So धीरे 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 काउंसलिंग करी, मदर वाज स्कैर्ड कि बच्चा 12th पास ही नहीं करेगा। हम्म, सो जब वो इमोशनली स्टेबल होना शुरू हुआ, स्टडीज में स्टेबिलिटी आई, हम्म, घर में रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आया, एंड हम्म, देन द मदर कॉल्ड कि आई वांटेड टू टेल यू उसके अच्छे मार्क्स आए, ही हैज क्लियर्ड हिज क्लास 12th। तो हम्म। वो मदर की जो खुशी थी ना, Joy in her speech, yeah, हाँ I आई can थिंक, imagine that. सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दैट हाँ, इज वन थिंग विच आई एम, अभी मुझे याद आ रहा है कि हाँ, दैट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑल टुगेदर। this is exactly like because you know people have to understand that coaches are meant to help you and bring that joy back in your life which goes missing deep down the road because हम लोग ऐसे होता है कि हम लोग कई इतनी बातें बोल ही नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते उसको अंदर दबाते दबाते और ज्यादा वो हो जाता है। Well, that was really nice, really really nice. And थैंक यू। I guess this is what concludes our interview. Thank you so much. It was very short and crisp, but I liked it that you could explain everything, whatever you are doing and teaching for the children. So I would highly recommend, that for थैंक यू। children especially because अब वो time आ गया है it's been a year. Kids are staying at home and parents need to बहुत, realize that they need to एब्सोल्युटली। send their children out. कितना टाइम तक हम डर सकते हैं? डरना is to an extent is okay. COVID is still not gone, it is still there, but then when things are opening, I think the first thing that the parents need to do is like send your children out because they really need to go out. अंदर बैठकर और सिर्फ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स से वो नॉलेज नहीं गेन हो सकता। आई थिंक बिकॉज जैसे जब हम छोटे होते थे हम लोग तो बाहर जाते थे खेलने के लिए, वी वर अलाउड टू गो आउट, नाउ द उसके थिंग्स एंड साथ मनवीर में एक चीज और कहना चाहूंगी हर पेरेंट को कि एकेडमिक्स के अलग
नजर से एक अपने बच्चे को देखिए, उसको टाइम दीजिए और प्लीज चेरिश कीजिए। Hmm. एंड वॉट एवर द चाइल्ड वॉन्ट्स टू शेयर विद यू, प्लीज लिसन Hmm. विदाउट एनी जजमेंट। Yes. वो बहुत बहुत अच्छा काम करता है कि सिर्फ सुन लो ना, क्या कहना चाहता है। हम उससे पहले ही अपना ये सजेशन देना शुरू कर देते हैं। बट इसके लिए भी पेरेंट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज सुनना भी एक आसान काम नहीं है। बैठकर सिर्फ सुनना आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। हम बहुत जल्दी बच्चों को वही जजमेंट दे देते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को पहले बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दैट इट्स द टाइम दैट यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर चाइल्ड, डोंट गिव एब्सोल्युटली। योर ओपिनियंस, डोंट डोंट बी कंपेयर जजमेंट, करने, डू हमारे नॉट टाइम पे कंपेयर। ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। नहीं है, सो नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर तो सकते। चेंज है और ना, लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये चेंज ग्रेजुअली ग्रेजुअली आता है। लाइफ बहुत ज्यादा जल्दी भाग रही है, बट हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। एक ये भी एस्पेक्ट है कि इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें भी थोड़ा सा रैपिड होना पड़ेगा, बच्चों की ज्यादा थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। हियर आई एम जस्ट नॉट सेइंग दैट इतनी भी सुन लो कि वो आप पे हावी हो जाए, नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल, बट देन सुनना जरूरी है। हम सुनते नहीं हैं अपने बैलेंस बच्चों बहुत को, जरूरी है, बहुत यस। ज्यादा जरूरी है। और हाँ, बैठकर सुनना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट मी टाइम इज नॉट जस्ट फॉर मी टाइम, इट्स अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, उसको छोटा नहीं दिखाएं, हाँ। उसको सीरियसली लो। एट टाइम्स बिल्कुल, बच्चा बोलता है लेकिन सीरियसली नहीं लेते पेरेंट्स, और बात हाथ से निकल जाती है। सो एग्जैक्ट, शुरू से ही बी लिटिल मोर विजिलेंट एंड लिसन मोर। या इस बात पे मैं दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। I would, even I would like to add this thing, like, I see, toddlers, I would rather say toddlers. Toddlers know how to operate a phone better than us. And this should यस, not be there. Because phone की जो apps वगैरह बनी हुई है, जो कुछ है, उनको बनाने के पीछे भी उसको बेचने का मकसद ज्यादा है. And for the toddlers, the parents should be giving more time to the children, not giving them mobiles nowadays, which is like this awareness has to really go high. कि छोटे से बच्चों को फोन देकर उनको कार्टून्स में, because you don't have time, so don't make them busy like this. यस, Please sit with them, play with them, give them some other games, which is an interaction. Let them learn, not with the cartoons and all that. Cartoons do teach you, but आजकल की जो cartoons is something different what is going on, because I also see this change in children. Small children are so aggressive, they'll come and hit their parents or siblings को मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्टून में देखते हैं कि मार सकते हो तो मार देते हैं। और बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको मना नहीं करते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा है, कोई बात नहीं। ये चीज भी मनबीन, हमें हमारे टाइम में और अब की जनरेशन में बच्चों की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। We were not that aware. Children are very, very intelligent. This abhi jo generation aa rahi hai, they are very smart, they are very intelligent. They learn from you. They learn Yes, from their they learn parents. from you. So parents have to be really seeing their own behavior first. Yeah, because And they rather learn than from their telling कि हम तो ऐसा कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते. they So learn वो from your बहुत एक actions also. The biggest thing is not just your words, your actions also. They learn a lot yes, from your actions. So yes, you need to be yes, very careful. How are you acting in front of them? Because yes, I think this is a very important part, and this yes, awareness also should go a lot. That toddlers yes. should not be given mobiles. It should be, I mean, they should be given more creative games rather than, making them busy with just the mobiles only. So Agreed. anyhow, we wish the all the best for everybody, for everybody's future. And thank you so much for giving your precious time. I'm gonna add the details of Indu in my in the link below, and anybody who needs any kind of help can definitely go and contact her also. So thank you so much. Thank you, Manbeen, for having me here. It was a Thank pleasure talking to you. Same here. Thank you so much. Thank you. Thank you.